اور اب خبریں تفصیل سے۔ ISIS میں شامل ہونے والے کشمیری نوجوان کو مملکت شام میں امریکی قیادت والی فورسز نے حراست میں لے لیا ہے۔ نوجوان کی شناخت سری نگر کے جواہر نگر کے رہنے والے عادل احمد کے طور پر کی گئی ہے۔ عادل احمد کے اہل خانہ نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ عادل نے انہیں ہمیشہ اندھیرے میں رکھا اور غلط جانکاری دیتا رہا۔ گھر والوں کے مطابق عادل حصول تعلیم کے لیے آسٹریلیا گیا اور وہاں MBA کی تکمیل کے بعد وہ شام گیا اور ISIS سے وابستہ ہو گیا تھا، لیکن عادل نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ وہ ترکی میں ایک NGO کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن حقیقت اس وقت آشکار ہوئی جب عادل نے مارچ کے مہینے میں فون پر اپنی والدہ کو بتایا کہ اس نے دیگر جنگجوؤں کے ہمراہ امریکی قیادت والی فورسز کے سامنے خود سپردگی کر لی ہے۔ اب عادل کے گھر والوں نے اس کی وطن واپسی کے لیے حکومت سے مدد کی گہار لگائی ہے۔ اسی سال ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ٹرکی میں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ بات کرتا تھا اچھی طرح، روز بات کرتا تھا، 10 دن بعد، مہینے بعد، 15 دن کے بعد ہمارے ساتھ بات کرتا تھا۔ تو میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اچھا ہوں، بس یہی کرتا تھا اور کچھ نہیں۔ تو پھر ہمیں شک ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے بولا کہ میں واپس آؤں لیکن پاسپورٹ میرا گم گیا۔ پھر اسی اسنا میں پرسوں 25 مارچ کو اس نے میسیج دیا، اسی طرح میسیج دیا ہے، ایسا ہوا ہوں، میں سیریا میں ہوں، تو ہم نے فوج نے گھیر لیا ہے، امریکہ فوج نے، تو ہم نے سرنڈر یہاں پہ کیا ہے، تو انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہے۔ اب ہمیں امید ہے کہ ہم گورنر صاحب سے ملیں گے تو وہ ہمارا ہیلپ کرے گا۔ تب پھر اس نے شادی بھی کی، ایک بچہ بھی تھا، وہ بھی شہید ہو گیا پرسوں، اس کو نمونیا ہو گیا، جب کچھ نہیں ملا تو نمونیا ہو گیا، وہ بھی 6 سال کا تھا، بیوی بند ہے۔ ہم چاہتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں اس گورنر صاحب سے سبوں کو کہ اس کو واپس لے آؤ، بس ہماری یہی گزارش ہے، اس کو واپس لے آؤ، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ کلگام کے تازی پورہ موہن پورہ میں گزشتہ رات فورسز نے ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلقہ اطلاع کے بعد علاقے کا محاصرہ کیا۔ تلاشی کارروائی کے دوران ایک مکان میں چھپے ملیٹنٹوں نے فورسز پر فائرنگ کی۔ یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملیٹنٹ جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران علاقے میں فورسز اور مشتعل افراد کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مشتعل افراد نے فورسز پر پتھراؤ کیا اور آپریشن میں خلل ڈالنے کی کوششیں کی۔ ان جھڑپوں میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ چند شدید زخمی افراد کو بعد میں سری نگر روانہ کیا گیا۔ علاقے میں جھڑپوں کے سبب کافی تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اس بیچ احتیاط کے طور پر انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی، تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ کلگام ضلع میں انکاؤنٹر کے دوران جھڑپوں میں درجنوں نوجوان زخمی ہو گئے ہیں۔ کئی زخمیوں کو علاج کے لیے SMHS اسپتال منتقل کیا گیا۔ چند زخمیوں کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر ان زخمیوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ضلع شوپیاں کے پنجورہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع پر آج بعد دوپہر محاصرہ کیا۔ محاصرہ اور تلاشی کارروائی کے دوران مشتعل نوجوانوں نے فورسز پر زبردست پتھراؤ کیا۔ اس سے علاقے میں حالات کافی کشیدہ ہو گئے۔ فورسز نے پتھراؤ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے۔ فورسز اور نوجوانوں کے درمیان ہوئی جھڑپوں میں کچھ افراد کو چوٹیں بھی آئیں۔ فورسز نے ملیٹنٹوں کی تلاشی کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کارروائی عمل میں لائی۔ کاچون انکاؤنٹر کے بعد آج اننت ناگ ضلع میں ہڑتال رہی۔ اس دوران تمام کاروباری اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حمل بھی متاثر رہی۔ امن و قانون کی صورتحال کو بحال رکھنے کی غرض سے قصبہ اننت ناگ سمیت ضلع کے تمام حساس مقامات پر سیکیورٹی کی اضافی تعیناتی رہی۔ قومی شاہراہ اور KP روڈ سمیت جنوبی کشمیر کے دیگر اہم شاہراہوں پر بھی سیکیورٹی کو بڑھایا گیا۔ پاکستانی فوج نے آج دوسرے دن بھی پونچھ میں LOC پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ پاکستان نے شاہپور سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کی اور فوجی چوکیوں کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ گولہ باری شروع ہوتے ہی LOC کے قریب واقع اسکولوں کو چھٹی دے دی گئی۔ طلباء کو اپنے گھروں کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فوج نے بھی پاکستان کی اس اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستانی فوج نے شاہپور سیکٹر میں تقریباً 2 گھنٹوں تک چھوٹے ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔
शाहपुर के अलावा केरनी, कस्बे और मेंढर में भी पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। चल रही है सुबह से 8 बजे से जी। रमजान का महीना चल रहा है, डर लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। तो किस तरह की परेशानी होती है गोलाबारी में? बहुत ज्यादा सर, जितना ये इलाका हमारा है इसको उन्होंने घेर रखा है, तो गोला चल रहा है इस वक्त। तो हमको ये मुसीबत है सर, हमारे बच्चे, गाड़ी सर, जो भैंस बकरी सब अंदर बंद है सर। क्या करेंगे सर? अगर 5 बजे खोलेंगे जानवर क्या चर लेगा, क्या खा लेगा? कोई घास नहीं है, कोई मुसीबत है सर, हमको बहुत मुसीबत है। पाकिस्तान से आने वाले गोले की जात में हमारे खास तौर से स्कूल हैं और जो गिरदोनवा बॉर्डर के एरिए में जो गांव हैं वहाँ बहुत ज़्यादा में आ रहे हैं। ख़ास तौर से तो हमें सबसे बड़ी परेशानी है जो बच्चों की है। जैसे मान लो कि स्कूल में छोटे बच्चे हैं, अकेडमियों में ख़ास तौर से छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको तो जैसे धमाके की आवाज़ सुनाई देगी तो उनको तो अभी मरने का ख़तरा है। तो इस हालात में अभी कोई पता नहीं कि कहाँ पे आकर बम फट जाता है। इसलिए फौज ने आज शहीद मेजर राहुल सिंह को खराज अकीदत पेश किया। मेजर राहुल गुज़िश्ता रात शुमाली कश्मीर के मसल सेक्टर में एलओसी पर एक फौजी दस्ते की क़यादत कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सीने में तकलीफ की शिकायत हुई। मेजर राहुल को फौरी तौर पर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन समेत फौज के दीगर सीनियर अफसरों ने शहीद को खराज अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद थे। राहुल का ताल्लुक राजस्थान के भरतपुर जिले से था। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीद के जज़्ज़े खाकी को उसके आबाई मकाम रवाना किया गया, जहां पूरे फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी बराए दाखिला राजीव गोबा ने आज श्रीनगर में आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में अमरनाथ यात्रा के इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में अमरनाथ यात्रा के लिए की गई तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इस दौरान यात्रा के लिए सिक्योरिटी के इंतजामात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में गवर्नर के मुशीर, उनके अलावा चीफ सेक्रेटरी, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला ओहदेदार मौजूद थे। 6 लोगों पर मुश्तमिल ये मरकजी टीम रियासत में मौजूदा हालात का जायजा लेने के साथ कई अहम मामलात का भी जायजा ले रहे हैं। उनमें असेंबली इंतखाबात भी शामिल हैं। कॉन्ट्रैक्ट की असास पर खिदमात अंजाम देने वाले टीचरों का श्रीनगर में एहतजाज जारी है। एहतजाजी टीचर्स उनकी खिदमात को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। यह एहतजाज आज 18वें दिन में दाखिल हो गया है। श्रीनगर के प्रताप पार्क में धरना दिया जा रहा है। एहतजाजी टीचर्स मुख्तलिफ स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट्स की असास पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, ताहम हुकूमत ने उनकी खिदमात रोक दी है। एहतजाजियों का कहना है कि हुकूमत ने तालीमी साल के दरमियान में उनको रोजगार से महरूम कर दिया है और इस वक्त उनके लिए रोजगार के मुतबादिल मौजूद नहीं है। माही सियाम के इस रमज़ान के महीने में पिछले 18 दिन से चिल्लाते हैं और अभी भी 0% रेस्पॉन्स है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमें आज पूरा भरोसा था आज हमें स्कूल्स में होना चाहिए, बच्चों का लॉस हो रहा है। और सर हम बस गुजारिश ये करते हैं आपसे, प्लीज़ सर हमें कंटिन्यू करो। और जिस तरह आपने अगर 90s में किया, 1992 में किया, 2006 में किया। माह रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाने का मौका फराहम करता है, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ कई ताजिर इसे मौका गनीमत जानकर गिरा फरोशी के जरिए ज्यादा से ज्यादा गुना जमा करने की फिराक में रहते हैं। कश्मीर के बाजारों में आजकल गिरा बाजारी उरूज पर है। पेश श्रीनगर से हमारे एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। कश्मीर के बाजारों में आजकल गिरा फरोशी का धंधा जोरों पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सब्जी, फलों और गोश्त की। सरकारी नरखनामा जारी कर दिया गया, लेकिन अवाम की भला यहाँ सुनता कौन है। बैगन दिखने में जैसा भी हो, लेकिन बिकता जरूर है और 80 रुपए फी किलो बिकता है, जो कि सरकारी नरखनामे की कीमत से दुगनी कीमत है। कड़म साग की सरकारी कीमत 25 रुपया फी किलो है, लेकिन श्रीनगर के बाजारों में 35 से 40 रुपए फी किलो में ही बिक रहा है। मटर और टमाटर किसी हद तक सार्फिन पर मेहरबान हैं, लेकिन पालक,
बीन और हरी मिर्च सरकारी नरखनामे की कीमत से दुगनी कीमत पर बेची जा रही हैं। बाकी सब्जियों का भी कमोबेश हाल यही है। और अगर यकीन ना आए तो दुकानदार हजरात की ज़बानी जरा खुद ही सुन लीजिए। पालक 50 गंडे 50 फ्रेश बीन तो डिम्बू बीन ना फ्रेश बीन के शीत है 80। बैंगन कैसे है? बैंगन कश्मीरी नहीं, ये पंजाबी है। हाँ। कैसे? रामबन किलो कैसे है? किलो 80 रुपये। 80। हाँ। टमाटर 30। टमाटर 30। मिर्च कैसा 30 रुपये पाव। 2 किलो को अकद 2 क्या 2 रुपये पाव। सॉरी 2 रुपये पाव। 2 रुपये पाव 60 रुपये किलो जनाब। उधर सार्फिन से पूछें तो वो सरकारी अफसरान की अदम तवज्जोही का ही रोना रोते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि कई लोग तो बगैर सवाल किए, बगैर मोल भाव किए हर चीज खरीद लेते हैं। रेट सब सही नहीं है। एक रेट एक जगह है, दूसरी रेट दूसरी जगह है, तीसरी रेट तीसरी जगह। मगर जो रेट गवर्नमेंट ने रखा है वो इन हिसाब से नहीं बेचते हैं। आम लोगों का धोखा मिलता है। खबर यहाँ मिलेगा सस्ता, उधर मिलेगा सस्ता, तो फिर वहाँ महंगाई सबसे महंगाई होती है। रेट लिस्ट कहीं देखा आपने? रेट लिस्ट कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कहीं भी नजर नहीं आ रही है तो रेट लिस्ट क्या रखेगा वो। उधर महकमा उमूर सार्फिन और अवामी तकसीमकारी के डायरेक्टर मोहम्मद कासिम वानी कहते हैं कि उन्होंने हर फोरम पर नरखनामे शाये किए हैं। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले ताजिरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी हमें शिकायतें आ रही हैं वहाँ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले इस महीने से हमने बहुत सारे लोगों के खिलाफ चालान किए, हमने FIRs काटे, हमने दुकानें सील की। हमने पिछले सिर्फ 1.5 महीने में ही लगभग 10 लाख रुपया उनसे जुर्माना भी वसूल किया। हमारी टीमें जा रही हैं, कंटिन्यूसली जा रही हैं और रेट लिस्ट आवेदन बहुत है। मुझे नहीं समझ नहीं आते, जब हम निकल जाते तो वो क्यों उठा लेते हैं। आपका अगर आप कहते हो कि नहीं है, इसका मतलब होगा कि जो ही हमारी टीम निकल जाती है तो वो रेट उठा के रख लेते हैं। और कसाब हजरात तो सीधे सार्फिन की जेबों पर ही छुरियां चला रहे हैं। वैसे तो कई साल से उन पर सरकार का बस नहीं चल रहा, लेकिन इस बार गोश्त की कीमतें 500 रुपए फी किलो पार कर चुकी हैं। और ये भी हकीकत है कि पिछले 3 साल से गोश्त की कीमतें मुकर्रर नहीं हो पाई हैं। माह रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें लोग गोश्त ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब हम दुकान पर जाते हैं, एक 500 रुपये बोलता है, दूसरा 450 बोलता है और 550 भी इस वक्त बिक रहा है गोश्त। तो इस पर लोग बहुत ही परेशान है। गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती। जहाँ से भी हमें शिकायतें मिल रही हैं कि मीट वाले ज़्यादा कीमत पर बेच रहे हैं, हम वहाँ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ड्यूकाम साहब खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। हर तहसील में हमने एक कमेटी बनाई हुई है। आपकी तवज्जो से लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वो हमें ताउन दें। हमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आती है जब भी हम किसी मीट वाले के पास या कहीं जाते हैं, जब लोगों से हम पूछते हैं कि भाई आप बता दीजिए कि आपने कितने में ये ख़रीदा है, वो हमें ताउन नहीं देते हैं। माह रमजान में फलों का इस्तेमाल ज्यादा होता है ताकि दिन भर की प्यास मिट सके, लेकिन इस बार कीमतें सुनकर ही गला है कि सूखने लगता है। अंगूर काला हो या फिर सब्ज, दोनों सरकारी नरखनामे पर छपी कीमत से 40 से 50 रुपए ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। काला अंगूर सरकारी नरखनामे के हिसाब से 155 रुपए फी किलो है, लेकिन बाजार में 180 से 200 रुपए फी किलो तक ही बिक रहा है। केला फी दर्जन 40 रुपए में बिकना चाहिए, लेकिन 75 से 80 रुपए में बिकता है। आम तो यहाँ कभी आम था ही नहीं, और इस बार ये आम भी कुछ ज्यादा ही खास हो गया है। 40 रुपए सरकारी कीमत है, लेकिन बिकता 70 से 80 रुपए में है। कश्मीर अपने सेब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ये अपना सेब भी अब आम इंसान के लिए अपना रहा ही नहीं। फहरिस्त लंबी है, कितना बयान किया जाए और क्या कुछ बयान किया जाए।
उम्मीद यही करते हैं कि सार्फिन बेदारी का सबूत देकर सरकारी ऑफिसर्स को हरकत में आने पर मजबूर करें और आम इंसान कुछ तो राहत की सांस ले सके। न्यूज़ 18 के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। जिला इंतजामिया पुलवामा की हिदायत पर आज सिडको लासीपुरा में एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को सील कर दिया गया है। इंशा नामी इस यूनिट को डीसी पुलवामा डॉक्टर सईद आबिद रशीद की हिदायत पर उस वक्त सील किया गया जब यूनिट के दही को गैर मयारी पाया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर और तहसीलदार लेतर की सरबराही में यूनिट को सील किया गया। इसके सभी ऑपरेशन पर पाबंदी आयद की गई है। उसका गैर मयारी दही से मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके बाद डीसी पुलवामा की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए दूध और दही के नमूने हासिल किए गए हैं। लेह में पेट्रोल पंप चौक के करीब मुबैना तौर पर सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंतजामिया ने अराजी अलॉटमेंट मनसूख करने का फैसला किया है। LAHDC लेह के चेयरमैन जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने आज मज़कूरा मकाम का मुआयना किया और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि इस अराजी का अलॉटमेंट फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाए। काउंसिल के चेयरमैन ने आज लेह में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। बांडीपुरा के आरागाम छपरन इलाके में महकमे जंगलात की जानिब से तजावुजात हटाने की मुहिम के दौरान गुजरों के कोठों को नजर आतिश करने पर एहतजाज और मजम्मत का सिलसिला जारी है। गुजरपति आरागाम में लोगों ने महकमे जंगलात के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मामले की जांच की जाए और मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। लोगों का कहना था कि अगरचे वो तजावुजात हटाने के हक में हैं, ताहम महकमे को कोठों में आग लगाने का हक किसने दिया। लोगों का कहना था कि आठूतों में भी कुछ असर रसूख रखने वाले लोगों ने जंगलाती अराजी पर तामीरात खड़े किए हैं, ताहम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के डॉक्टर मुस्तफा खान ने महकमे जंगलात की कार्रवाई की मजम्मत की है। महकमे ने पहले ही इन्हदामी कार्रवाई के दौरान कोठों में आग लगाने से इनकार किया है। अफसोस इस चीज़ का है कि DFO साहब बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों ने एनक्लोजमेंट किया था। एनक्लोजमेंट का जो भी है वो कोई सा मामला नहीं हुआ। ये आए किसी ज़ाती अनाद पे लोगों के घर जलाए, लोगों के कोठे नमा घर जलाए, मकान जलाए और जला के चला गए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ, खुसूसन गुजर कम्युनिटी के साथ। हमारा हक बनता है जंगलों में कोठा बना के वहाँ पे माल मवेशी पालना, और इसलिए हम सरापा एहतजाज हैं। हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से, गवर्नर महोदय से, अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम सड़कों पे आएंगे। डिपार्टमेंट हमेशा के लिए दो राय रखती है, क्योंकि वहाँ पे एक होटल है अटफत्तू में, उसके लिए डिपार्टमेंट ने उनको जाके सड़क दी, और वहाँ पे हमारे 40 कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ बस रहे हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं है, वो गरीब बेबस सड़क भी नहीं है। उनको सड़क दी गई पैसे लेकर, लेकिन उनके लिए कहीं भी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट इंतजामिया को कि हम जो गुज्जर बेकस और बेबस पड़े हुए हैं जंगलों में, हमें इंसाफ दिया जाए। ये जब हमारे दादा थे, परदादा थे, उनसे पीछे हमने आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा है जो ये कल और परसों हो गया है, और कितनी नाइंसाफी से ये हुआ है। चलो अगर ये हो गया था, मगर इसकी इन्फॉर्मेशन होनी थी, इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं हुई है। तो ये देखो कि ये हमारा ज़रिया है, मतलब माल मवेशी यहाँ ही जाता है। ये गरीब लोग हैं, ये कहाँ लेके जाएंगे, मतलब कहाँ निकलेगा इनका माल, ये कहाँ बैठेंगे, इनको कहाँ जगह है, कितनी इन्होंने नाइंसाफी की है। टंगमर्ग के चक फिरोजपुरा पहाड़ के दामन में नाला फिरोजपुरा के बह जाने से दरख्त और जंगल की जमीन नाले में बह रही है। महकमे जंगलात और दूसरे महकमे जहां जंगल बचाओ के नारे और मुहिम चला रहे हैं, वहीं चक फिरोजपुरा में पेश आए इस वाकये से महकमे के उन नारों पर सवालिया निशान लग जाता है। मकामी लोगों ने महकमे जंगलात, फ्लड कंट्रोल और महकमे सॉइल कंजर्वेशन की खामोशी पर बरहमी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मामले को कई मरतबा मुतल्लिका महकमों के आला अफसरान की नोटिस में लाया, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। लोगों का कहना है कि अगर नाला और जंगल के बीच पुख्ता बंड तामीर किया जाए तो यह कीमती सरमाया बच सकता है। पिछले 2 सालों से ये पानी जो है इस नाले फिरोजपुरा का इस जंगल के नीचे से बह रहा है,
और नवी जनरेशन जो भी ये पौधे लगे हुए थे ये सारे उखड़ के जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती, 3 महकमे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, PH डिपार्टमेंट, इरिगेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 3 में से एक भी इसमें किसी ने नहीं सोचा कि ये जो नुकसानात हो रहे हैं, इतना ये आज ड्राइव चल रही है, प्लांटेशन करो, जंगल बचाओ, ये जंगल आप बचाओ, जो दरख्त लगे हुए हैं इसको बचाओ, इसको कोई डिफेंस करो। फिलहाल तो बड़े प्रोजेक्ट की बात तो अलग है। ये हम इसी मकसद से आए हैं कि जंगल बचना चाहिए, बाकी हमारा कोई पर्सनल मकसद नहीं है, ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही ये गाँव वालों की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये पूरे इलाके की प्रॉपर्टी है। ये मेरे ख्याल से जो हमारी नई जनरेशन है उनकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि माहौल इसी के साथ रहता है। जब पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे रखे इधर? हाँ, पौधे जो जब हम यही चाहते हैं, इसको कुछ ना कुछ पौधे बचाओ। सबसे पहले जंगल बचेगा तभी पौधे बचेंगे, जब जंगल ही बच जाएगा, जमीन नहीं रहेगी तो पौधे कहाँ बचेंगे? मिसवाक करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। माह रमजान में रोजेदार कसरत के साथ मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं। क्या है मिसवाक की खासियत? देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक का तीसरा और आखिरी अशरा चल रहा है। जहन्नुम से निजात के लिए इस अशरे में रोजेदार खुशू और खुजू के साथ इबादतों में मसरूफ हैं और बारगाह रब्बुल इज्जत में अपनी बख्शिश के लिए इसके कई फायदे बयान करते हैं। 1982 में WHO की एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी सेहत जो थी, दांतों की सेहत वो बेहतर देखी गई थी और वजह था मिसवाक और मंजन। अगर हम मिसवाक को देखें, इट इज ऑलवेज डिस्पोजेबल, जबकि ब्रश जो है शायद 500 साल लगा लेता है इस जमीन पर कि ताकि वो डिस्पोज हो जाए। कि मिसवाक जो है दाफिय ताफुन है, एंटीबैक्टीरियल है, इसमें ट्राई मेथाइल अमाइन पड़ता है और गंधक पड़ता है जो मुंह की आलाइश को दूर करता है, टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करता है। ये जो मैल है दांतों का उसको जमने से रोकती है। मिसवाक दांतों और मुंह की सफाई और मसूड़ों की सेहत का बेहतरीन जरिया है। साथ ही ये निजाम हाजमा में भी मुआविन साबित होती है। कई दुकानों में मिसवाक मिल जाती है और कई अफराद इससे अपना रोजगार भी कमाते हैं। मिसवाक के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन बेशतर अफराद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमें ये सवाब है मिसवाक करना सर, दूसरा ये बेनिफिट बहुत सारे देते हैं। एक तो दांतों में जो कीटाणु होते हैं वो बाहर निकलते हैं सर, और हमें सबसे बड़ी सुन्नत है नमाज के टाइम ये मिसवाक करना, नमाज के बाद मिसवाक करना, ये हमारे लिए बहुत कुछ है जी। मिसवाक तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और माह रमज़ान में, और माह रमज़ान ही नहीं हर दिन में ये करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ है टूथपेस्ट से, यही अच्छा है, इससे बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले सेहत बिल्कुल सफाई इसमें रहे और सुन्नत भी है। हालांकि अब ब्रश और टूथपेस्ट की वजह से मिसवाक का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन मिसवाक की इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जदीद तहकीक में भी मिसवाक के कई फायदों का एतराफ़ किया गया है। उम्मत मुसल्लिमा के कई अफराद साल के 12 महीने मिसवाक करते हैं, ताहम इस मुबारक महीने में मिसवाक का इस्तेमाल बढ़ जाता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। भलीसा में चली सब डिवीजन के भटोली इलाके में अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। डीसी डोडा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अवामी मसाइल की समाअत की। मकामी इंतजामिया की तरफ से डीसी डोडा का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया गया। इंतजामिया ने डीसी के इस्तकबाल के चक्कर में सरकारी स्कूल के बच्चों को फर्श पर बिठा दिया। दरअसल डीसी के लिए जो टाट बिछाई गई थी वो करीब के एक स्कूल से लाई गई थी, जिस पर बैठकर बच्चे तालीम हासिल करते थे। इस प्रोग्राम के लिए बच्चों को नीचे जमीन पर बिठा दिया गया और स्कूल की टाट को बतौर सुर्ख कालीन इस्तेमाल किया गया। मकामी अफराद ने इंतजामिया की इस हरकत पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। गली में पब्लिक दरबार था और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज डी साहब के दरबार के दौरान हाई स्कूल भटोली से बच्चों का टाट उठा के और रास्ते में डाला गया और बच्चे जमीन पर बैठे हुए थे।
मैं गवर्नर इंतजामिया से अपील करूंगा कि इस पे एक्शन लिया जाए कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल का टाट जो है बच्चों के नीचे से निकाल के और फंक्शन में इस्तेमाल किया गया। डीसी साहब आए, ठीक है, हमारी मुश्किल थी, लेकिन उन्हें हल उम्मीद था, लेकिन ये स्कूल हमारा यह हालात है, उसको टाट भी उठा गया ले गया रास्ता के बीच, डीसी साहब ऊपर गयो कि ईदगाह में गवर्नर साहब ने गए अपील करा और इसको हमारे नाल इंसाफ किया जाए कि इसको कदे मारना हुआ है, हमारा बच्चा का टाट उठा भी कदे सड़क में लावे थे, इसी को मैं ठीक है। बांडीपुरा के सरहदी तहसील तुलेल में बड़ुआब के सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल में तदरीसी अमले, एक तालिब इल्म और उसके वालिद के दरमियान तनाजा खड़ा हो गया है। तदरीसी अमले की शिकायत है कि बाद चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुरा ने स्कूल में काम कर रहे चौकीदार मोहम्मद अफजल लोन को मुअत्तल किया है। 3 अफसरों को 1 हफ्ते के अंदर मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया गया है। मोहम्मद अफजल ने इल्जाम लगाया है कि स्कूल में ताखीर से आने पर उनके बेटे को पिछले 16 रोज से स्कूल आने नहीं दिया जा रहा है। उनका इल्जाम है कि स्कूल के प्रिंसिपल और एक लेक्चरर ने उनके बेटे की मारपीट की। तदरीसी अमले ने दोनों बाप बेटे पर कुछ असातिज़ा के साथ धमकी देने का इल्जाम लगाया है। चीफ एजुकेशन अफसर ने स्कूल के प्रिंसिपल को इंतबाह देते हुए फौरी तौर पर मुतल्लिका तालिब इल्म को क्लास में बैठने की इजाजत देने का हुक्म जारी किया है। सरहदी इलाकों के स्कूलों में सकाफती और तमद्दुनी तबादला एक कामयाब मिशन साबित हो रहा है। ऐसे ही स्कूलों में करगिल के काकसर गांव में वाक़ई स्कूल है। यह इलाका काफी वक्त तक हिंदू पाक के बीच गोलाबारी का शिकार रहा है। इस वजह से तालीमी सरगर्मियां भी मुतासिर रही। काकसर का ये स्कूल करगिल के पुराने स्कूलों में शुमार होता है। हाल ही में इसका दर्जा बढ़ाकर उसे हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया गया है। स्कूल में मुरवजा तालीम के साथ साथ बाकी स्कूलों के साथ आपसी तालमेल, सकाफत, तमद्दुन और भाईचारे को फरोग देने के लिए सरगर्मियां होती रहती है। उसमें असातिज़ा का अहम रोल रहता है। इस मिशन के तहत काकसर हाई स्कूल और मिडिल स्कूल लातू के बच्चों ने एक तकरीब में हिस्सा लिया। बच्चों ने लातू की कुदरती खूबसूरती और खुली सरहद के करीब यहाँ के नायाब पत्थरों में नक्शकारी की, जिसे इत्तेहाद और भाईचारे के नमूने पेश किए गए। सरहदी स्कूलों के इस मिशन को तालीमी मैदान में एक अहम संग-मील करार दिया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी जो है आर्ट एंड क्राफ्ट्स का भी क्लास चलता है। बहुत अच्छा लगता है कि ये सारी चीजें जो है हमारे स्कूल में होती है। नेचर में जाके हमने वहाँ पे वो रॉक पेंटिंग किया, हमने नदी के किनारे किया। वहाँ पे हम दोनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं थी। 2 स्कूल एक साथ मिलके काम कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, उनके टीचरों से मिले, उनके उस्तादों से मिले, जाकर हमें बहुत अच्छा लगा। और इस साल हम लातू स्कूल में गए थे रॉक पेंटिंग बनाने के लिए। हम पहले तो हमें पता ही नहीं था तो रॉक में भी कोई पेंटिंग बना सकते। फिर हम वहाँ पे गए, बहुत अच्छा लगा, उनसे मिले, उनने भी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया और हमने भी बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया। जो मेन ऑब्जेक्टिव इस वर्कशॉप का कि हम अपने बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दें, यानी कि आर्ट के द्वारा वो अपने जज्बात को बयां करें। तो ये बहुत काफी इनिशिएटिव लिया हमारे स्कूल के अथॉरिटीज और लातू स्कूल के अथॉरिटीज ने। खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे जो है बच्चे अपने आर्ट का मजा ले। तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा। गवर्नमेंट हाई स्कूल मांझामा त्राल में जगह की कमी की वजह से तलबा और असातिज़ा को मुश्किलात दरपेश है। उनका कहना है कि स्कूल के लिए सिर्फ 5 कमरे हैं, उनमें 2 कमरे ऑफिस और लेबॉरेटरी के लिए मुख्तस है। 3 कमरों में 9 क्लासों के बच्चों को तालीम हासिल करनी पड़ती है। बाकी क्लास स्कूल के बाहर खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में एक ही बैतुल खुला है, दीवार बंदी भी नहीं की गई है। जब न्यूज़ 18 ने चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा नसीमुल गनी के साथ इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा कि स्कूल का दर्जा हाल ही में बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक नई इमारत तामीर की जाएगी। पुलवामा के टहाब इलाके की आपाशी नहर नाकारा होने से कई देहात में सूखे की सूरत हाल पैदा हो गई है। नहर का एक बड़ा हिस्सा गुज़िश्ता साल ढह गया था। महकमे आपाशी ने नहर की मरम्मत अमल में लाई, लेकिन उसके बावजूद रवा बरस नहर को आपाशी के लिए चालू नहीं किया गया है। इस वजह से धान के खेत और मेवा बागात खुश्क साली के शिकार हो गए हैं। लादनामी इस नहर पर जिले के कई देहात मुनहसर हैं।